सलवात सलामती इमाम ज़मान। सूरह फातिहा। أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيعنا بالقاسم محمد صلى الله عليه وسلم الطيبين الطاهرين المعصومين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد بسم الله الرحمن الرحيم سائل بعذاب واقع للكافرون ليس لهم دافع تعرج الملائكة في الروح يوم ألف سنة صبرا جميلا اداکارہ نے شہدائے کربلا جس قافلے کو ہم لے کے چلے تھے غم حسین کی، وہ اپنی منزل معراج پہ دھیرے دھیرے پہنچ رہا ہے، لیکن ماشاءاللہ ہم بیویوں کے شوق اور ذوق کی تعریف کرتے زبان نہیں تھکے گی کہ آخر محرم تک بھی یہی جنون ہوتا ہے۔ یہ ہمارا اپنا نہیں ہے، یہ کسی کی دعا ہے۔ ہم وہ ہیں جو کسی کی دعا کا نتیجہ ہیں۔ غم سید شبیر جو ہے وہ جگہ ہے، یہ عزائے حسین یہ وہ شفا خانہ ہے کہ جہاں پر جب ہم جھوٹ کے سمندر میں انسانیت تھپیڑے کھاتے کھاتے تھک جاتی ہے، دل کو کچھ سکون کی ضرورت ہوتی ہے، ہماری سانسیں ٹوٹنے لگتی ہیں، تو اس ٹوٹتی ہوئی سانسوں کو جلا دینے کے لیے عزاخانہ ابو طالب میں آتے ہیں۔ جب ہم تھک جاتے ہیں تو ہم جس شفا خانے میں آتے ہیں اسے مجلس حسین کہتے ہیں۔ عزیزان گرامی، ہمارے آگے دیواریں ہیں، مگر کون سی دیواریں ہیں؟ جو سورہ یاسین میں کہا گیا ہے بین ایدیہم سدا فخلقناہم سدا، تمہارے چاروں طرف دیواریں ہیں، مگر وہ دیواریں جو قرآن میں تذکرہ ہے وہ نفس کی دیواریں ہیں۔ ہمارے چاروں طرف ائمہ طاہرین کی دیواریں ہیں، ہمارے پاس گھر نہیں ہے، ائمہ کی دیواریں ہیں، چھت نہیں ہے، غازی کا علم ہے، وہ آئے نہیں ہیں بلائے گئے ہیں، وہ بیٹھے نہیں ہیں بٹھائے گئے ہیں، ہمیں ان کی ضرورت تھی وہ اس لیے بلائے گئے ہیں۔ سما مبنیتوں ولا زمدیتوں ولا خمر منیروں ولا شمس مضیتوں، ہے نا، یہ بارگاہ ان کے لیے سجائی گئی ہے۔ کیوں؟ ہمیں ضرورت تھی، انہیں ہماری ضرورت نہیں ہے۔ یہ تو تمہیدی گفتگو ہے، لیکن ہاں جو حسین چاہتے ہیں
وہ کاش ہم سے ہو جائے. سالہ سائل بعذاب واقعہ، یعنی ایک عذاب لینے والے نے خود سے عذاب مانگا. 30ویں سپارے کی بہت سی آیات ایسی ہیں، اور میں اس لیے 20ویں سپارے کی آیات کو لیتی ہوں، زیادہ تر قیامت کا تذکرہ ہے. حضور بہت سنیں. ابھی ذکر عزائے حسین میں بیٹھی ہیں، ذرا سا جگہ کی بات ہو جائے، آپ ذرا کھسک جائیے، آپ ذرا، ہم پیر پھیلائے ہوئے ہیں، اسی پہ دل میں انتشار برپا ہو جائے گا. کوئی فائدہ نہیں ہے. دل میں گنجائش پیدا کریں. اسی گنجائش پیدا کرنے کا نام ہے غم شبیر. حسین ہمیں سلیقہ زندگی دیتا ہے، حسین ہماری سانسوں کو جلا دیتا ہے، بی بی زہرا ہمیں چلنے کا سلیقہ دیتی ہے، حسین حسن ہمیں حسن اخلاق دیتے ہیں. میں ایک جملہ کہہ دوں کہ قسم خدا، اگر رسول کی اللہ کی وحدانیت ہے تو کس کی وجہ سے ہے؟ رسول کی رسالت، علی کی ولایت، بطول کی طہارت، حسن کی سخاوت، حسین کی شہادت، زین العابدین کا سجدہ یا زین العابدین کی عبادت، باقر کا علم باقر الصدف کہے جاتے ہیں، جعفر کی صداقت، موسی کاظم کا قزم العین، رضا کی رضا، نقی کا جلوہ، تقی کا جلوہ، اور نقی کی حیبت، عسکری کی حیبت، اور مہندی کی غیبت نہ ہوتی تو یہ کائنات باقی نہ ہوتی. کچھ باقی ہے. تھوڑا سا اس مائک کو تھوڑا سا پیچھے لگتا ہے، کیونکہ خوف لگا رہتا ہے ایسا نہ ہو کہ آپ کی اچھی سماعت کے ہم جوش ولا میں آ کے اس کو قربان کر دیں. یہ تو بہت بڑی چیز ہے، کیونکہ یہ وسیلہ ہے ہمارے آپ کے بیچ میں. اب یہ زیادہ دور نہ کریں، جتنی دور ہو جائے تو بہرحال اتنا کی ایڈجسٹمنٹ ہم کر سکیں. سلوات دے محمد واقعہ لیسا لہم کافرین للکافرین لیسا لہم دافع. عذاب مانگنے والے نے خود سے عذاب مانگا. ایک آیت کے 70 معنی بھی ہوتے ہیں. کبھی کبھی ہمارا ہے نا کہ وہ کہا جاتا ہے کہ جب دماغ خراب ہوتا ہے تو اچھوں کی بات نہیں سمجھ میں آتی ہے. عذاب مانگنے والے نے خود سے عذاب مانگا. جب کوئی سمجھائے اپنے آپ کو. یہ ایک جملہ اور کہہ دوں، جب صفحے عذاب پہ آئے تو یہ سمجھے ہمارا وجود کچھ نہیں ہے، اور یہاں ممبر پہ آئے تو میں نہیں، ایک بچہ بھی آئے اس کی بات کو غور سے سنیں. اور میں تو ایک بات اور کہوں گی کہ پوری زندگی میں یہ خیال رکھیں، ہر ایک کی بات کو غور سے سنیں. خود پسندی کوئی چیز نہیں ہے، ہم کچھ نہیں ہیں. اپنی انا کو ختم کر دیں، ہے نا، اپنی انا کو اتنا ختم کریں کہ خود ہی تمہاری اتنی بلند ہو جائے کہ اللہ پوچھے نا خود ہی کو کر بلند اتنا کہ ہر تدبیر سے پہلے خدا بندے سے پوچھے تمہاری رضا کیا ہے. یہی تو تھا بھائی، یا ابراہیم یا حسین دو عشق کرنے والے اللہ سے ہیں، خود ہی کو اپنی اتنا 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 بلند کر دیا کہ اللہ رضا پوچھ رہا ہے. یا ابراہیم عشق کرنے والے، لیکن ابراہیم عشق کرنے والے ہیں، لیکن قرآن میں آیتیں ہیں جملہ کو، قرآن میں کیا ہے؟ یا تطمئن قلبی، کہ اطمینان ہے مگر قلب اطمینان کے لیے. پوچھا تھا نا پروردگار عالم نے، کیا تمہیں ایمان نہیں ہے؟ لا تؤمنوا، کیا تمہیں ایمان نہیں ہے؟ تو کہا مطمئنہ قلبی، اپنے قلب کے اطمینان کے لیے. ایمان تو ہے پروردگار، لیکن فرق دیکھیے ابراہیم اور حسین دو عشق کرنے والے جنہوں نے
اپنے اولاد کو اللہ کی راہ میں کیا. لیکن مجھے جب دونوں کا تقابل کرتے ہیں تو تھوڑا سا ایک چیز ذہن میں آ جاتی ہے کہ ایک میٹرک کا ایگزام ہے اور ایک IAS کا ایگزام ہے. ابراہیم والا جو ہے نا بس میٹرک تک کا ہے. بھائی نبی خدا ہے اور آج بھی کائنات جاتی ہے حج کرنے کے لیے, بہت بڑا مرتبہ ہے جناب ابراہیم کا, کم نہ سمجھیے گا. لیکن حسین کا کیوں؟ کیونکہ 3-4 امتحان ہوئے تھے, میں اس وقت وہاں نہیں جانا چاہ رہی. لیکن امتحان جو ہو رہے تھے وہ کیا ہوتا ہے, جیسے یہاں بچہ بیٹھا ہے, ہم اس سے کہیں بیٹا اس کے ہاتھ میں ٹافی ہے, چھین لیے کہیں یہ ہمیں دے دو, اس کے بعد ہم نے لیا اسے دے دیا. اس کے بعد دوسری بار جب ہم اس سے مانگیں گے تو وہ خوشی خوشی دے دے گا. اسے معلوم ہوگا کہ یہ تو واپس کر دیتی ہے. ابراہیم کے جتنے امتحان ہوئے تھے وہ واپس مل گئی تھی, بھیڑ مل گئی, بکریاں مل گئی, آگ میں ڈالے گئے, وہ میٹرک ہو گیا. لیکن حسین کا امتحان, پروردگار ابراہیم اور حسین میں آپ فرق دیکھیے کہ پروردگار وہ فخر ابراہیم ہے کہ پروردگار پوچھ رہا ہے کہ لا تو نے کیا تمہیں اطمینان نہیں کہا کہ یطمئن قلبی, اپنے دل کے اطمینان کے مطمئن کرنے کے لیے میں پوچھنا چاہ رہا ہوں پروردگار تو کیسے مردوں کو زندہ کرتا ہے. لیکن حسین وہ اطمینان قلب والا انسان, وہ بندہ ہے اللہ کا قریب کہ جس کے لیے ادھر تو ابراہیم اطمینان تلاش کر رہے ہیں. جو دل کے اطمینان کو تلاش کرے اسے ابراہیم کہتے ہیں, اور جو نفس مطمئنہ ہو اسے حسین کہتے ہیں. جاؤ یہ تو ہم نفس مطمئنہ زندہ باد, زندہ باد, لبیک یا حسین, لبیک یا حسین, لبیک یا حسین, لبیک یا حسین. بات جہاں پہ چھوڑی تھی کہ اپنی خودی کو, اپنے آپ کو جب جگائیں تو سفیدہ پہ یہ تصور کر لیں ہم کچھ نہیں ہیں. جب ہم یہ سوچیں گے کچھ نہیں ہے تو ہمیں دوسرے کی بات سمجھ میں آتی ہے, کیونکہ دوسرا جب ہم سے کلام کرتا رہتا ہے, اور اکثر ایسا بھی ہوتا ہے کہ ہم کسی کو پسند کرتے ہیں, کسی کو نہیں پسند کرتے. جسے پسند کرتے ہیں اس کا کلام بھی بہت پسند آتا ہے, اور جسے ہم ناپسند کرتے ہیں جب وہ ہم سے گفتگو کرتا ہے, یہ عام معاشرے کی بات میں کہہ رہے ہیں, بالکل ہیومن سائیکالوجی ہے جو کہ جیسے ہم ناپسند کرتے ہیں وہ جب ہم سے بات کرتا ہے, ادھر اس نے بات ابھی مکمل نہیں ہوئی, ہم جواب تلاشا کرتے ہیں. جواب تلاشنے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے, جواب خود بخود آ جایا کرتے ہیں. دوسرے کی بات کو غور سے سننے کی عادت ڈالیں. ذہن وسیع ہوتا ہے, چاہے دوست ہو, چاہے دشمن ہو, چاہے ایک چھوٹا سا بچہ ہو, چاہے بوڑھا ہو, چاہے جوان ہو. کون کسے سکھا کر چلا جائے آپ تصور نہیں کر سکتی ہے. سالہ صاحب بعضاب واقعہ کے عذاب مانگنے والے نے عذاب مانگا. دو بڑے اجماع ہوئے ہیں تاریخ میں, یا عرش پہ ہوا ہے یا فرش پہ ہوا ہے, یا یہ مان لیں دو بڑے الیکشن ہوئے ہیں, ایک عرش پہ الیکشن ہوا تھا اور فرش پہ الیکشن ہوا تھا. عرش پہ کون سا تھا؟ ملائکہ اور اللہ کروانے والا تھا. سارے ملائکہ تو تھے, اور انکار کرنے والا کون ہوا؟ لیکن فرش اور عرش دونوں میں بالکل مقابلے پہ. وہاں سے آدم کو سجدہ کروایا جا رہا تھا, لیکن ہم بھول جاتے ہیں وہ آدم کو سجدہ نہیں تھا, وہ ان 14 کا سجدہ تھا. آدم کو سجدہ کروائے جا رہے تھے. اس لیے عزیزان گرامی کبھی بھی کوئی بھی آپ سے کوئی بات کہے تو یہ ذہنوں میں رکھیں, ہو سکتا ہے اس کے پس پردہ کوئی چیز ہو, ہے نا. کیونکہ پروردگار عالم نے یہی تو کہا تھا ما خلقتا یدیا, ابلیس ما خلقتا یدیا, میں نے جن کو دونوں ہاتھوں سے بنایا تھا تم نے کیوں انکار کر دیا. ما خلقتا یدیا, ما
खलकता यदैया, ये कौन सा खलकता? मैंने बनाया माँ, मैंने बनाया था, मैंने खलक किया था। यदैया, यदा कहते हैं हाथ को, दोनों हाथों से बनाया था जिसको, उसको तुमने सजदा करने से क्यों इनकार कर दिया? तो मैं कहूँगी परवरदिगार तेरे हाथ तो है नहीं, तो तू हाथ कौन से कह रहा? परवरदिगार कहेगा मैंने पूरे कुरान में हर जगह दो का तज़किरा किया, मग़रबैन कहाँ है, शहादतैन कहाँ है और यदैन कहाँ है? तो ये दो कौन से हैं? एक अली का हाथ था और एक रसूल का हाथ था। हम आप अपने माशरे में भी जिंदगी में जब कोई काम करता है हमारा बच्चा, तो हम क्या कहते हैं? ये मेरा दाहिना हाथ है, ये मेरा बायां हाथ है। परवरदिगार कह रहा खलकता मा यदैया, कि जिसको मैंने दोनों हाथों से बनाया था उसको तुमने सजदा करने से इनकार क्यों कर दिया? सल्लल्लाहु अलैहि और काफिर हो गए। एक निकल गया, वहां भी एक निकल गया था और यहाँ भी एक निकल गया। वहां निकलने वाला शैतान था, यहाँ निकलने वाला हारिस इब्ने नौमान था। खड़ा हो गया, पूरे तारीखी वाक़े से किसी भी किताब से या सुन्नी किसी फिक़्ह से देख सकती हैं। वहां से निकलने वाला, उस महफिल से निकलने वाला शैतान था, यहाँ हारिस इब्ने नौमान था। वहां पे उसने इंतशार किया था, यहाँ पर इसने अपने आप अजाब मांगा, कहा कि अगर वो अल्लाह के वली तो बताओ सबूत दो साला साइलुन में अजाबिन वाक़या। सबूत मांग रहा था कि आसमान से पत्थर गिरे मेरे सर के ऊपर बिजली बन के, तो तुम दिखाओ। उसने अजाब मांगने वाले ने मांगा, अजाब बन के वो पत्थर आया, सर से गिरा और निकल गया उसके जिस्म से। साला साइलुन में अजाबिन वाक़या काफिरीना लैसा दाफिया, जो अजाब तो हमने काफिरों के लिए किया था। तारजुल मरूब मिन रूह है, सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद वाले ताराज किससे बना है? उरूज की जमा है। तारजुल मलाइका तो मिन रूह खमसीना अल्फा सनतिन सबरन जमीला। ये वो दिन होगा जो मैं हिसाब का तज़किरा परवरदिगार आलम कर रहा है कि ये वो दिन होगा, एक दिन 50,000 साल का होगा। और खमसीना, और उसके बाद जो है यहाँ सब्र नहीं होता है। खमसीना अल्फा सनतिन सबरन जमीला, हमारे पास सब्र के अलावा कोई चारा नहीं होगा। और तुम्हारे साथ क्या होंगे? बैना ऐदीहिम मिन नूरिकुम, तुम्हारी नेकी तुम्हारे आगे और पीछे क्या होगी? तुम्हारा नामा अमाल होगा जो नेकी बन के नूर, वो नूर जो है वो थोड़ा थोड़ा तुम्हारे आगे और पीछे होगा। ये जो सूरह की आयत की मैंने तिलावत की है, अभी मुझे इमाम ज़माना तक लाना है। खुदा बंदा हमारी सांसें तब तक के न रुके जब तक के हम अपने आखिरी हुज्जत का दीदार न करें। जो बीबियाँ यहाँ पे आई हैं, बीबी फातिमा ज़हरा, इनकी तमाम मुरादों को पूरा करना। जो जवान बच्चियाँ हैं इनको कामयाब करना। जो कैद में है सैयद सज्जाद की मुक़य्यद का तंजीरों का वास्ता उनके कैद से आज़ाद करना। जो बीमार हैं उन्हें शिफा देना। जो तालिबे इल्म है उनके इल्म में इजाफा करना। और ये हमें सैयदुल शुहदा का वास्ता देते हुए बीवी मैं कहती हूँ, जो हमारे बीच से बीवियाँ चली गई हैं, जो भी मोमिनीन चले गए, उनकी रूहों को सफ़े अज़ा पे आने की इजाज़त ज़रूर देना। मैंने जुमला कहा, वहाँ पे बात आगे गई कि वहाँ भी एक निकला था और यहाँ भी एक निकला था। यहाँ विलायत अली का ऐलान हुआ था और ये वो ऐलान था।
جو قیامت تک کے ایک حجت کے لیے. ہماری آپ کی زندگی میں بہت سے ایسے واقعات ہوتے ہیں, ہے نا. اکثر لوگ یہ کہتے ہیں یا یہ ہم سے پوچھتے ہیں کہ آخری حجت کا آپ انتظار کرتی ہیں, آپ کو کیسے پتا ہے؟ ہم کہتے ہیں کہ بھائی یہ مجلس ہو رہی ہے, یہ صف ارضا بچھی ہوئی ہے. کس کے لیے بچھی ہے؟ مجلس کے لیے. ہم چلے جائیں گے یہ کل بھی بچھی رہے گی. کیوں بچھی رہے گی؟ ایام ارضا ہے, مجلس ہونا ہے. پروردگار نے کہا کہ یہ آسمانوں کا شامیانہ, یہ زمین کی دریا میں نے بچھائی کس کے لیے؟ ان 14 کے لیے, یہ تمہارے لیے. تو محمد اگر چلے گئے تھے تو یہ اڑ جانا چاہیے آسمانوں کا شامیانہ, یہ چاند سورج کے قندیلیں اڑ جانا چاہیے. کہوں گی کہ پوچھ رہا ہے پوچھنے والا کہ بھائی نہیں ہے, اگر کوئی ہادی نہیں ہے تو ان دریوں کو اٹھ جانا چاہیے. کائنات باقی ہے, زمین اپنی جگہ پر منظر کر رہی ہے. اس کے معنی یہ ہے کہ کوئی ہے پردے کے اندر. محمد گیا نہیں ہے, محمد ہے موجود. محمد کے موجود ہونے کی دلیل قرآن یہ دے رہا ہے نا. قرآن تو کب تک کے لیے؟ قیامت تک کے لیے ہے. تو قرآن یاسین میں یہی تو کہہ رہا ہے, یاسین والقرآن الحکیم, کہ ہمیں یاسین ہے, یہ یاسین ہے, والقرآن حکیم ہے. تو یہ قرآن حکیم ہے, اہدنا الصراط المستقیم, اور یہی ہے صراط مستقیم. عزیزان گرامی, ہماری آپ کی زندگی میں چھوٹے چھوٹے سے واقعات ہوتے رہتے ہیں. علامہ ہلی کا نام بہت سے ذاکرین بیان کرتے ہیں. ہلی کیوں لگتا ہے؟ ہلا ایک جگہ ہے جو زائرین جاتے ہیں زیارت پہ. ہلا کے رہنے والے تھے اس لیے وہ ہلی کہے جاتے تھے. علامہ کیوں ہوئے؟ انہوں نے علم کرنے کی خواہش حاصل کرا اور علم کو بڑھانے کی خواہش کی. علم بڑھتا ہے بھائی, یہی تو دو شوق ہیں انسان کے, کہ انسان اگر علم کی تمنا کرے تو کبھی وہ جستجو پوری نہیں ہوتی ہے. سوائے موقع کائنات کے یہ سلونی کا دعویٰ کرنے کے کسی میں دم نہیں ہے, جرأت نہیں ہے کہ وہ کر سکے. تو ہماری آپ کی زندگی میں ایک امام چھوٹے چھوٹے سے واقعات ہے. علامہ ہلی کا ایک واقعہ کہ آپ جاتے تھے, وہ مسجد سہلا جو ہے وہ مشہور ہے اس بات کے لیے کہ یہاں پر امام زمانہ کی ہمارے زیارت ہوتی ہے. آپ وہاں پہ جا رہے تھے, صبح کا وقت تھا, آسرا لو لگائے گئے ہیں. ہم کہتے ہیں کہ ہمیں امام زمانہ کا دیدار محسوس ہو, میسر آ جائے. ہم دل سے یاد نہیں کرتے ہیں. دل سے یاد کریں تو ضرور مثال دوں, دلیل دوں. دل سے نہ یاد کرنے کی, آپ بہت زیادہ رات کے کھانا کھا کے سو جائیں اور پانی نہ پئیں, چڑھ کے کھا لیں کھانا, اور وہ بھی نہاری واری ہے, اور بنا پانی کے سو جائیں تو رات میں کیا ہوگا؟ آنکھ کھلے گی تو خواب میں بھی آپ پانی پانی طلب کریں گے. ایک پیاس جو ہمارے دل کو, میری روح کو ضرورت ہوئی تو ہم خواب میں بھی پانی تلاش کر رہے. کاش ہم امام زمانہ کی یا مولا علی کی تسبیح اپنی سانسوں میں کر لیں تو وہ سانسیں نہیں ٹوٹیں گی, ہم سانسوں میں بھر لیں. مولا علی کو, امام زمانہ کو ہمیں دیدار کراتے ہیں میرے مولا. علامہ ہلا کے رہنے والے تھے, اس لیے ہلی کہلائے. جا رہے ہیں زیارت کے لیے, تلاش ہے کہ امام زمانہ کی زیارت ہو جائے. دیکھا چلتے چلتے ایک نوجوان ان کے آگے سے گزرا. اب دیکھیے ہم میں بصیرت ہوتی ہے, وہ لہو میں نولا یا چلنا بہا, وہ لہو آزاد نولا یا یسمعونا بہا. اپنے آنکھوں کو, اپنے ذہنوں کو کھول کے رکھو. پروردگار کہہ رہا ہے. کوئی نکلا تو چونکہ علم زیادہ تھا تو بصارت کو اپنی نظر بصارت سے پہچان گئے کہ یہ تو کوئی عالم ہے, کیونکہ ان کے چلنے کے طریقے سے. اب انہوں نے کیا کیا, وہ تو پیدل تھے, لیکن یہ دیکھیں کہ ہم چاہے کسی سواری پہ ہوں, لیکن ہمارے امام جو ہوتے ہیں وہ جب دیدار کراتے ہیں تو کسی عام شکل میں ہوتے ہیں. کبھی بھی کسی عام یا معمولی آدمی کو معمولی سمجھ کے گزر نہ کریے گا. وہ آگے بڑھتے ہوئے انہوں نے اپنے گھوڑے کو تھوڑا تیز رفتار کیا. اس لیے تیز کیا کہ یہ جو بھی ہوگی, میری ویڈیو سے گزارش ہے تھوڑا سا بچوں کی آواز پہ قابو رکھیں,
बच्चों को थोड़ा अपने पास रखें। मैं ये कभी नहीं कहूँगी, कहती हूँ कि बच्चों को साथ में न लाएं, लेकिन बच्चे मजलिस अज़ा में आए, सिर्फ हमें शब्बीर ये समझाया जाए, बचपन से शीर में पिलाया जाता है, यही तो वजह होती है। हम शियाने हैदर कर्रार के बच्चों को नाम बताने की जरूरत नहीं होती, इधर हुसैन कहा सीने पे हाथ पड़ने लगते हैं। हम नाम बच्चे हमारे नहीं बता सकते हैं, लेकिन अपना कबीला बता देते हैं। इन्होंने अपने घोड़े को थोड़ा तेज करते हुए चाहा कि हम इनके बराबर में हों, घोड़े को तेज किया। लेकिन हमारी आम जिंदगी में क्या है दस्तूर, अगर किसी के तेज पीछे से चलने की आवाज आती है तो क्या होता है, हम फौरन पीछे मुड़ के देखते हैं। लेकिन वो जीशान खुशरू जवान जो जा रहे थे आगे, उन्होंने पलट के नहीं देखा। जब पलट के नहीं देखा तो ये बराबर में आए, इन्होंने अस्सलाम वालेकुम कहा, फौरन जवाब आया वालेकुम अस्सलाम। जो बिना पलट के देखे जवाब आया तो इन्होंने कहा ये कोई आला मर्तबत तो नहीं है, अब जो मुझे सवाल पूछने हैं वो हम इनसे सवाल पूछते हैं। तो उन्होंने कुछ सवाल पूछे और वो जवाब देते रहे, लेकिन आगे बढ़ते रहे। जब ये सवाल पूछ चुके तो उन्होंने एक जुमला और कहा हिली, तुमने अभी अल्लामा नहीं हुए, इल्म हासिल करने के बाद तो अल्लामा होते। हम तो चाहते हैं कि थोड़ा सा पढ़ने हमें लोग अल्लामा समझने लगे, औलिया समझने लगे। इल्म हासिल करने के बड़े दर्जात होते हैं। मैं कहा हिली, तुमने वो सवाल तो पूछा ही नहीं जो तुम सोच के आए थे। इन्हें बड़ी हैरत हुई। उन्होंने कहा हुजूर, मैंने आपकी बसीरत को देखा तो मुझे कुछ चंद सवाल और आ गए। आप पूछो। इन्होंने फुला किताब का हवाला दिया और कहा उसमें तो है इसका जवाब, जो सवाल पूछा था उसकी तशरीह की जरूरत नहीं है। इन्होंने कहा मैंने तो बहुत बार पढ़ी है लेकिन मुझे निगाह से नहीं गुजरा। कहा यही तो वजह होती है कि जब हम सरसरी तौर पे किसी चीजों को इमाम है ये समझाना चाह रहे हैं, है ना, हम कहते हैं हमने इमाम का दीदार नहीं किया। जब इंशाअल्लाह हमारे इमाम ज़माना ज़हूर करेंगे तो हम देख के ये कहेंगे कि अरे हमारी इस जगह पे मदद फलां ने की थी, ये तो इमाम ज़माना का भेजा हुआ नायब था। जहाँ पे मदद हुई थी ये तो इमाम ज़माना का मैंने दीदार किया था। मौला करे कि हम सब ने दीदार किया हो। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अच्छा, अब ये बात हो गई। इन्होंने जल्दी से जो इनको लव लगी थी वो इन्होंने सवाल किया। कहा हुजूर एक सवाल बता दें कि इमाम ज़माना का दीदार हो सकता है मुझे? बस ये पूछना था। भी आधे जुमले थे, इनके हाथ में जो घोड़ा था, घोड़े के कपड़ा जो इनके हाथ में थी चाबू, वो जो है इनके हाथ से गिर गई। गिरी नहीं थी, कोई चीज राह में अगर गिर जाए तो वो गिरती नहीं है, उसके पीछे भी मसलहत होती। गिरी नहीं थी, वो गिराई गई थी। गिर गई चूंकि वो घोड़े पे था, ये नीचे थे इमाम हमारे, आपने इनको उठा के दिया। आपका अगर मर्तबा बुलंद हो, अगर कोई आपको नहीं जानता है तो आप अपने तकब्बुर में रहेंगे कि हम इनका काम क्यों करें, ये मेरे इमाम ज़माना हमें किरदार अपना दिखा रहे हैं। आप आए आगे, है ना। उसने ये पूछा था कि क्या हमें मयस्सर हो सकता है इमाम का दीदार। उठाया उस कपड़े को और उठाने के बाद दिया तो ऐसे दिया कि हाथ मस हो गया
और इधर हाथ मत हुआ और ये कहते हुए वो गायब हो गए। कहा हिल्ली तुम अगर दिल से कोई बात सोचते हो तो तुम्हारे इमाम ज़माना जरूर तुम्हें दीदार कराते हैं। जो वो गायब हुए तो ये परेशान हो गए। कहा कि हमसे खता हो गई, मैं तो कदमों में गिर पड़ता। अजीज़ान गिरामी, एक छोटा सा और बात है, उसके बाद मैं आऊँगी रब्ते मसाइल, क्योंकि हमारे अइम्मा तारीन हमारी कहाँ कहाँ मदद करते हैं हम सोच नहीं सकते हैं। अगर वो मदद न करते तो ये कायनात न बाकी होती। वो तो इतने करीम है कि वो दुश्मन की भी मदद करते हैं। एक बच्चा, एक और शख्स है जो नौजवान है जिसके दिल में बहुत लगन है कि हम इमाम ज़माना का ज़हूर करें, हम इमाम ज़माना हमारे ज़हूर करें, हम इमाम ज़माना की ज़ियारत करें। उसने रात में तस्बीह पढ़ी साहिबुल ज़मान की और उसके बाद जो वो सोया तो उसे कुछ ऐसी बशारत हुई। ये मैं बहुत बड़ी किताबों के हवाले से पढ़ रही हूँ, अगर किसी को भी कोई पूछना होगा इससे मुताल्लिक तो पूछ सकता है। तो जब उसने ख्वाब में देखा, इख्तिसार से बहुत बता रही, क्योंकि वाक़ई दामने वक्त में गुंजाइश नहीं होती है तफसील से बताने के लिए। जब ख्वाब में देखा, क्या देखा कि तुम फुला जगह पर पहुँच जाना, फुला बाजार में और फुला जगह पर तुम पहुँच जाना। ये सुबह उठा, बहराली से तलब थी मौला की, ये पहुँचा। जब वहाँ पे गया तो देखा एक खूबसूरत जीरू बैठे हुए हैं और एक दुकान के सामने, लेकिन इसे कुछ खास अंदाजा नहीं हुआ। इन्होंने बैठे देखा, इन्होंने सलाम किया। चूंकि इमाम हमारे आम तरीके से हमारे सामने पेश होते हैं, इमाम थे, इमाम ने अपने को कुल्लो शै नसना उसी इमाम मुबीन, हर शय में इमाम मुबीन होता, हर शय कायनात की इमाम मुबीन में ऐसा है। वो बढ़ा और उसके बाद देख रहा है इतनी देर में, अभी उनसे कुछ सवाल करना चाहता था कि एक ज़ईफ़ा आई और हाथों में बालियां लिए हुए। वो बालियों को कहा कि इस बाली की रकम दुकानदार के पास आई। उसने कहा इस बाली की कीमत भाई हमें इसकी 3 दिरहम अगर आप दे दें तो अच्छा है। कहा कि क्यों 3 दिरहम क्यों मांग रही है? कहा मैं बाजार में, मुझे 3 दिरहम की ज़रूरत है और लोग बाजार में 2 दिरहम इसकी कीमत लगा रहे हैं। कहा कि तुम्हारी ये बालियाँ तो 7 दिरहम की हैं। अब सुनना, कहा कि ये बालियाँ तो 7 दिरहम की है। उसने को बड़ी हैरत से वो ज़ईफ़ा देखने लगी। कहा मैं तो कह रही हूँ कि मुझे 3 दिरहम में कोई दे दे, कोई दे नहीं रहा भाई, अगर आपको 7 दिरहम। कहा ये 7 दिरहम की है, मैं इसकी कीमत बता रहा हूँ और 7 की है, मैं 8 की बेचूंगा, 1 दिरहम अपने पास रखूंगा, मैं तुमको 7 दिरहम देता हूँ। 7 दिरहम उसने दिया उस दुकानदार ने और उसके बाद वो लेके गई। जब उधर वो लेके चली तो ये हैरत से देख रहा था। ये बच्चा जब आगे बढ़ने लगा तो जो खुशशान नौजवान बैठे हुए थे उन्होंने एक बार कहा कि बच्चे अगर तुम्हें मौला की तलब है तो मौला तुम नहीं आओगे मौला के पास, मौला खुद तुमसे इमाम ज़माना मिलने आएंगे। जो इस दुकानदार ने अपने किरदार को दिखाया है वो किरदार अगर तू अपने अंदर ले आ तो इमाम खुद तुमसे मिलने के लिए आएंगे। जवाब देना इमाम मुबीन के वो होता है जिसकी तमाम कायनात ऐसा होती है। छोटे छोटे से वाक़यात हैं, ये पढ़े नहीं जाते हैं। हमारे मौला इमाम हसन गुजर रहे हैं, कैसे गुजर रहे हैं? अभी वहाँ इमाम ऊपर थे, यहाँ नीचे थे, जमीन में पैदल चल रहे थे, यहाँ इमाम घोड़े पे सवार हैं। एक जिसके हाथ न है न पैर है और वो इमाम को आगे देख रहा है, तो चलने के तर्ज को देख के पहचान नहीं रहा था कि इमाम है। उसने कहा कि काश अगर मेरे भी हाथ पैर होते तो इस नौजवान के जाके मैं बोसा देता, इसके चलने का क्या तर्ज है ना। इमाम को अगर दिल से तसव्वुर किया, इधर इसने कहा, इधर इमाम को पता चल गया। इमाम उसके पास से गुजरे, अभी वहाँ कपड़ा उसके हाथ से गिरा था वो घोड़े का और यहाँ पे वो चाबुक इमाम ने गिराई, गिरी नहीं गिराई गई। कहा ए बच्चे ये उठा दे, जो चल नहीं सकता था, जो खड़ा नहीं हो सकता था, जो इधर कपड़ा गिरा
अब वो देख क्या रहा है कि उसमें तवानाई पैदा होती गई, तवानाई पैदा होती गई। उसने उस कपड़े को उठाया और मौला को कदमों में गिर पड़ा। वो समझ गया कि इमाम है, कोई नबी है। अज़ीज़ान गिरामी, तो वो मेरा इमाम, वो समझने वाला है, ये वो करीम है जो बैठे नहीं हैं, बिठाए गए हैं, जो आए नहीं हैं, बुलाए गए हैं। ज़हरानी शुहदाए करबला, ये बालियों का जिक्र, ये बंदों का जिक्र हम बहुत सुनते हैं, आपके जहन वहाँ पहुँच गए। लेकिन हाँ, उस मासूमा का तज़किरा कि जब खानदान रिसालत में कोई बच्चे होते थे तो तोहफे दिए जाते थे लोगों को। जब ज़ैनब हुई थी तो हुसैन ने चादरें दी थी, जब अली अकबर हुए थे तो मौला ने कनीज़ें रेहा की थी बीवियों। लेकिन जब मेरी बीवी वाली सकीना पैदा हुई थी तो मेरे मौला ने बालियां दी थी लोगों को। हाँ अजीजों, मेरा मौला, हाँ अजीजा निगरानी, एक छोटा सा वाक़या बताते हुए कि मौला ज़ुलजनाब कौन है, ये मुर्तजिज़ कौन है, कहाँ से आया है। मेरे मौला कायनात के लिए कोई घोड़े लेकर आया था। कौन सा घोड़ा लेकर आया था? वो घोड़ी थी। वो बहुत अच्छा, उसने आके मौला से एक जुमला कहा कि मौला मैं आपके लिए घोड़ा नहीं है, मैं घोड़ी लाया हूँ, मगर इस घोड़ी की सिफत ये है, ये रब्त मसाइब में आता है। चूंकि ये वाक़या का घोड़ी की सिफत ये है कि ये अपने ऊपर से सवार को गिरने नहीं देती है, और ये जब सवार को उतारती है तो जगह को देख के उतारती है। कहा कैसे? कहा चाहे जितनी ऊंची नीची जगह हो, जब ये अपने सवार को उतारती है तो अपने पैरों को जमीन पे टेक देती है, उसका सवार जमीन पे गिरने न पाए। मौला ने कहा अच्छा इसको लाओ। जब वो घोड़ी लाई गई बीवियों तो घोड़ी पीछे मुड़ मुड़ के कुछ देख रही थी। 2 बार या 3 बार उस घोड़ी ने पीछे देखा। मेरे मौला ने कहा कि क्या इसका कोई बच्चा पीछे रह गया है? वो मौला के कदमों पे गिर पड़ा। कहा हाँ, का इसका एक बच्चा है। कहा इसका हसरत से इस घोड़ी का देखना ये बता रहा है कि इसका बच्चा इससे दूर कर लिया गया है। अजीजों, बच्चे की इतनी मोहब्बत होती है, आप अपने ज़हनों को रूह करबला ले जाइएगा। उसने कहा हाँ इसका बच्चा है। कहा उसको क्यों नहीं साथ लाया? कहा हुजूर को बच्चा ऐसा है किसी लायक नहीं है। कहा क्या वजह है? कहा वो अपने ऊपर किसी को सवार नहीं होने देता है, और जब असर का वक्त होता है तो सहरा में चला जाता है, आसमान की तरफ देख के गिरिया करता रहता है। मेरे आप समझ गए ना, आंखें जहन खोल के, ये कौन है? ये मुर्तजिज़ है जिसे हम ज़ुलजनाब कहते हैं। बीवियों भी ज़ैनब करबला पहुंची है, करबला से मदीने के लिए रवाना हुई है। मैं वहां तक आपके ज़हनों को ले जाऊंगी। मौला ने कहा जिसकी मुझे तलाश थी वो मुझे मिल गया है, तू इसके बच्चे को लेकर आओ। लाया गया मुर्तजिज़ पे हुसैन सवार होते थे। हुसैन अपने हाथ से उसको दाना और पानी खिलाते थे। मुर्तजिज़ को बीबी ज़हरा की चादर में दाना खिलाया जाता था। बीबियों ज़ुलजना इसका नाम क्यों पड़ा? रोज़े आशूरा ज़ुलजना के दोनों तरफ से इतने तीर लग गए थे जैसे वो तीर नहीं थे, पर थे ज़ुलजना थे। मेरे मौला ने कहा ज़ुलजना, रसूल ने कहा इसको वो परदा होंगे अर्श में, इसलिए इसका नाम तो ज़ुलजना पड़ा। आज़ीज़ान गिरामी, मेरा मौला हुसैन मुर्तजिज़ पे सवार होके आया है। खुदा न करे किसी बाप से उसका बच्चा जुदा हो। सकीना को कैसे हुसैन ने जुदा किया होगा? हुसैन सकीना को अपने से जुदा करके जा रहे हैं, सकीना को देख रहे हैं। एक वो लम्हा था जब अली अकबर को हुसैन ने भेजा था। उस वक्त मेरे मौला ने कहा था ए अली अकबर, काश तुम साहिब औलाद होते। लेकिन हाय अजीजों, मेरे मौला की मजलूमी, वो सकीना है जो सीने पे हुसैन के सोने वाली है, हसरत से देख रहे हैं। ज़ुलजना पे सवार होके आए हैं, चारों तरफ से तीरों का बरने
मशालों से हमला करता है, कोई तीरों से हमला करता है, कोई तलवारों से हमला करता है। हाँ अजीजान गिरामी सुलझना है। मेरे मौला ने एक बार सुलझना की बाहों में बाहें डाल दी और क्या जुमला कहा, ये सुलझना अगर मैं जमीन पे आ जाऊं तो तुम बदला न लेना। सुलझना ने अपनी बेज़बानी में क्या कहा है, ये क्या कह रहे कहा, सुलझना अगर तुमने बदला लिया तो खैमे तक हमारी सुनानी ले जाने वाला कोई नहीं होगा। सकीना तेरे खैमे पे खड़ी इंतजार कर रही है, ज़ैनब तेरे खैमे पे खड़ी इंतजार कर रही है। अजरकुम अलैह। हाँ अज़ीज़ान गिरामी, कितनी भी गरीब बहन हो, कितना भी गरीब भाई हो, अगर किसी बहन का भाई मर जाता है और घर से बुलावा आए, आ जाओ, बहन शौहर से क्या कहती है, ए मेरे मालिक अभी मेरे माजाए का चेहलम नहीं हुआ है, मैं कैसे आऊं, मेरे भैया का चेहलम हो जाएगा तो मैं आऊंगी। अजीजों मेरी बीबी ज़ैनब कितनी मजलूम है, हाय सकीना कितनी मजलूम है, कितना भी बड़ा मुजरिम हो, अगर लाश पे बाप और बेटी मिल रहे हो, जिंदगी में भी मिल रहे हो, खाने में भी मिल रहे हो बीबियों, तो बाप और बेटी को जुदा नहीं किया जाता। लेकिन हाँ अज़ीज़ान गिरामी, ज़ैनब कितनी मजलूम है। 11 मुहर्रम को हथपटिया बेड़ियों के साथ करबला से कूफा, कूफे से शाम ले जाया जा रहा है। वो ज़ैनब अब करबला आई है, मसमसाए में इख्तिसार कर दिया, आपने हक़ ज़हरा अदा कर दिया। बीबी फातिमा ज़हरा ने कहा आपकी आंखें में अश्क हो, हमसे अपनी अपनी मुरादें यहाँ कह के जाना। अजीजों एक मुद्दत के बाद हाय भाई से बिछड़े हुए बहन जब करबला की सरजमीन पे आई होगी, बीबियां सुन सकेंगी करबला की खाक को खाके शिफा कहते हैं, खाली रोज़े हुसैन की खाक नहीं है, खाके शिफा। 22 मुरब्बा मील तक जहाँ भी खाक उठाओ वो खाके शिफा क्यों में ही जाती है। सुन सकेंगी रोज़े आशूरा, अरे जिस हुसैन को मुर्तजिज़ ने इतने अदब से उतारा था कि मेरे आका को खाक पे अदब से उतारा जाए, आका के जिस्म घर को चोट न लगे। बीवियों शाम गरीबा में घोड़ों की नाल बंदी करके लाशों पे घोड़े दौड़ाए गए थे। 22 मुरब्बा मील तक के घोड़े दौड़ते जाते थे। कोई काले बुर्के वाली बीबी लाशों से घोड़े के सुओं से लाशों के पांचों को समेटती जाती थी, कहती थी हाय हुसैन, हाय हुसैन। इसलिए 22 मुरब्बा मील तक के जो जमीन है हुसैन का लहू मिल गया है, खाके शिफा बन गई है। ज़ैनब आई है करबला चेहलम करके। हाँ बीबियों कैसे जुदा हुई बेटी, जीते न चाहता था पर जबरन हुई सवार। ज़ैनब करबला से मदीने के लिए सवार हो गई है। आखिरी ज़िक्र है हमारे पर, खुदा न करे मुसीबत पड़े बीबियों, लेकिन जब मुसीबत पड़ती है अपने वतन के लोग परदेश में बहुत याद आते हैं। ज़ैनब मदीने पहुंच रही है, सैयदे सज्जाद पहुंच रहे, बस आखिरी फ़िक्रा है, खुदा करे सबकी बहनों को भाई सलामत रहे। आए मुद्दत के बाद फातिमा सुहरा से सैयदे सज्जाद सुहरा आ गई मस्जिद नबवी में बैठी हुई है। सैयदे सज्जाद आ गए और मस्जिद नबवी पे बैठे हैं। बीबी ने सुना काफिला आया है, मदीने आ रही है, मस्जिद नबवी की तरफ आ रही है। एक बार आई घर पे और क्या करती हैं, और भाई ऐसा गरीब है कि बहन भाई को पहचान न सकी। कहा ये शख्स मुझे अंदर जाना है नाना से मिलने के लिए। सैयदे सज्जाद सर को झुकाए हुए हैं। कहा ये शख्स, मैंने कहा हट जा रास्ते से, फिर सैयदे सज्जाद सर को झुकाए हुए हैं। तीसरा जुमला मेरी बीबी ने कहा, उसके बाद मैं छोड़ दूंगी। बीबी और सुनिएगा, अपने अपनी मुरादें कह के उठना यहाँ से। अपने साथ कौन जीता है
जात की मजलूमी का वास्ता, जो बीमार हैं उन्हें शिफा दे, उनकी हथकड़ियों का वास्ता जो बच्चे हैं उनके इल्म में इजाफा करना, इमाम ज़माना मेरी रूह उस वक्त तक हसन सरी से जुदा न हो जब तक कि हम आखिरी हुज्जत का दीदार न कर लें। पालने वाले हम इस गम को रस्मन न मनाएं, जो करें वो दिल से करें। जो बच्चे हैं इस गर्मी में बारेला उनके इल्म को इतना बुलंद करना कि ये माएँ अपने बच्चों से पहचानी जाए, हमें एहसास से फख्र हो। सकीना की मजलूमी का वास्ता, सबके बच्चों को बारे यतीमी से बचाए रखना। यतीम लफ्ज़ अपने आप को बहुत फसाने कहता है, जो हाथ नजी के अलम को उठाने के लिए उठते हैं, इसमें कुव्वत अलम की कुव्वत देना वाला। बीबी ने कहा है तुम जब सफ़े अज़ा करो तुम्हारे आंखों में अश्क हो, अपनी अपनी मुरादें हमें सफ़े अज़ा पे कह के जाना। बीबी आप लोगों के दिलों के हाल को जानने वाली हैं। बीबी ज़हरा इन्हें यहाँ से बामुराद भेजना, हम मदीने जाएं, करबला जाएं और तमाम वाजिबात से मुशर्रफ हों। मातमे हुसैन।